Hello students of class 12th. This is my third lecture on unit 3. That is, in this lecture we will discuss about the important proof, the use of Biot-Savart law to show that if the magnetic field at a point P at a perpendicular distance small r from a long current carrying conductor is given by B is equal to mu naught upon 4 pi 2I upon r. This expression we have to prove. We will take the aid of a diagram to prove this. Suppose this AB is a conductor in which the current I is flowing, and there is certain point O. From this point O there is a point P perpendicular to this current carrying wire. This is 90 degree. Okay, now this is at r distance from O. We can say that OP is the distance between O and P is r, small r, and if we join end A to point P and B to point P, then the angle alpha represent the angle between OP and BP, and the angle beta represent the angle between OP and AP. Okay, now if we take a small element whose length is dl, and this dl is at small l distance from O, so this small l represents the distance of one end of dl from O, and dl is the length of the small element, and this element is represented by EF. And if we join this EF to this point P, then this becomes a triangle EFP. Okay, and suppose this angle EPF is d theta. This is d theta. Okay, now if we draw a parallel line to this OP at point E, then we will get a parallel line like this. It has got some sense. I will explain you later. So this is alpha, this is beta, and this the angle made by EP with OP is theta. Means we can say that EPO is theta, and we have made this parallel line so that we know that this angle will be 90 degree plus theta. Means itna 90 degree ho gaya because this is parallel to this perpendicular line OP. OP is perpendicular to AP, so we can say that EQ, suppose this point is Q, EQ is also perpendicular to AP, perpendicular to AB. So this angle is 90 degree, and if we add this theta, because this is parallel line, so according to maths, alternate angle will be made here. So this angle will be theta. Means theta will be the angle which is made by PEQ. PEQ थीटा हो गया. जैसे OPE थीटा है, वैसे बिकॉज ये दोनों लाइन पैरेलल्स हैं तो PEQ भी थीटा होगा. और ये आप जानते हैं कि जो EQ है वो परपेंडिकुलर टू AB है, तो ये 90 हो गया. तो इसलिए ये पूरा एंगल FEP ये 90 प्लस थीटा हो गया. ठीक है, आप देखिए स्टेप वाइज मैं आपको समझा रहा हूं, डायग्राम समझना बहुत जरूरी था. द डिस्टेंस बिटवीन E एंड P इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल p. ओके, अब सारी चीज बिल्कुल क्लियर हो गई. क्या क्या चीज क्लियर हो गई कि जो लोअर एंड है कंडक्टर का, उससे P को जब ज्वाइन करेंगे तो OPB अल्फा एंगल है. इसी तरह से A को जब हम P से ज्वाइन करेंगे तो OPA ये बीटा एंगल है. ठीक है, दिस इज बीटा. और स्मॉल एलिमेंट EF को जब हम P से ज्वाइन करेंगे तो E से P की जो डिस्टेंस है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल p. द एंगल EPO इज थीटा. E से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया दैट इज EQ विच इज जस्ट पैरेलल टू. अब जब क्योंकि OP परपेंडिकुलर है AB के, तो इसलिए EQ भी परपेंडिकुलर हुआ AB के, तो हम कह सकते हैं EQ इज पैरेलल टू OP.
तो जब ये पैरेलल है तो इट मीन्स जो एंगल है एफ ई क्यू ये 90 डिग्री है, और क्योंकि ये पैरेलल है तो इसलिए ओ पी ई और पी ई क्यू ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए। ऑल्टरनेट एंगल हो गया, इसका मतलब ये एंगल थीटा हो गया, इसमें 90 ऐड हो जाएगा तो ये 90 प्लस थीटा हो गया। ओके, अब स्टेप वाइज मैं प्रूफ आपको समझा रहा हूं। स्टेप नंबर 1, मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड एट पॉइंट P सच दैट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस OP इज इक्वल टू R। O से P के बीच की डिस्टेंस स्मॉल r है। स्टेप 2, कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट DL which is indicated by EF of the conductor at a distance P from P, at a distance small p from P. Okay, now step number 3, now we will use Biot-Savart law at point P। Biot-Savart law का फॉर्मूला आपको पता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब इसको अगर मैं इसमें यूज करूंगा तो क्या होगा, हेयर लेट स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड हम कंसीडर कर रहे हैं, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू DL, ड्यू टू द करंट कैरिंग DL, DL इज द स्मॉल एलिमेंट ऑफ द कंडक्टर। सो DL की वजह से स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी DB इज प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट I थ्रू DL। तो क्या हो जाएगा, बायो-सेवर्ट लॉ अगर हम लगाते हैं तो DB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL। और आपको मैंने बताया कि जो ये एंगल है 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा मीन्स जो यहाँ पे थीटा होता है आइडियल साइन थीटा, थीटा किसके बीच का एंगल होता है, थीटा एंगल होता है DL और P के बीच का, DL और P के बीच का मीन्स जो पॉइंट है वहां से स्मॉल एलिमेंट कितना एंगल बना रहा है तो वो 90 प्लस थीटा है। तो इसलिए थीटा की जगह हमने 90 प्लस थीटा लिखा, तो साइन 90 प्लस थीटा अपॉन डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस देखिए P है, डिस्टेंस E से P के बीच की डिस्टेंस क्या है, मतलब स्मॉल एलिमेंट के लोअर एंड और P से P के बीच की डिस्टेंस स्मॉल p है। तो यहाँ पे R स्क्वायर की जगह P स्क्वायर हमने पुट किया। सो DB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, इसकी जगह कॉस थीटा हो गया अपॉन P स्क्वायर। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। स्टेप नंबर 4 में देखिए, इन ट्रायंगल POE O से लोअर एंड ऑफ दैट स्मॉल एलिमेंट E है, इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, L है, मैंने आपको पहले ही बताया। E से P की डिस्टेंस स्मॉल p है, O से P की डिस्टेंस स्मॉल r है। तो अगर हम, और ये थीटा है, EPO इज थीटा, जो अपने मेन डायग्राम में मैंने आपको समझाया। तो अगर cos थीटा अगर हम इस ट्रायंगल को बेस मान करके cos थीटा अगर हम निकालें, cos थीटा हमको पता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस क्या होता है r, इस डायग्राम में बेस क्या है r, अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है p, सो r अपॉन स्मॉल p, सो इट विल बी p इज इक्वल टू r अपॉन cos थीटा। r अपॉन cos थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं r sec थीटा, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप इज, इसके बाद क्या करेंगे, इसी में ही हम tan थीटा अगर निकालते हैं, अभी हमने क्या किया, cos थीटा निकाला, ये आपको स्टेप में ध्यान रखना पड़ेगा स्टेप नंबर 4 में कि हमको इसी ट्रायंगल का यूज करके, EOP का यूज करके हमने को cos थीटा निकालना है। cos थीटा क्यों निकालना है, क्योंकि हमको sec थीटा के फॉर्म में p को डिनोट करना है। सो स्मॉल p इज इक्वल टू r sec थीटा, ये हमको याद रखना है। अब इसी ट्रायंगल का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, tan थीटा हम निकालेंगे। tan थीटा आपको क्या पता है, आपको ये है tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, EO है, EO की डिस्टेंस क्या है, स्मॉल l, अपॉन बेस क्या है, स्मॉल r, सो l अपॉन r। तो इसलिए l इज इक्वल टू r tan थीटा हो गया, l इज इक्वल टू r tan थीटा हो गया। तो अब देखिए, देन DL इज इक्वल टू r sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ये कहां से आया, इसको एक्सप्लेन करेंगे। DL इज इक्वल टू r sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ये कहां से आया, सीधी बात है कि ये जो L इज इक्वल टू r tan थीटा है, इसको हम L को हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करेंगे। जब L को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करेंगे तो DL अपॉन d थीटा आ जाएगा। तो d अपॉन d थीटा और L की वैल्यू क्या है, L इज इक्वल टू r tan थीटा, यहाँ पे r tan थीटा हमने लिख दिया, ठीक है। तो r d बाई r इज कांस्टेंट, तो ये बाहर आ जाएगा, मीन्स डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा। सो r d अपॉन d थीटा tan थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए DL अपॉन d थीटा इज इक्वल टू r d अपॉन d थीटा tan थीटा क्या होता है, इतना एक्सप्रेशन क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है। तो हमने d अपॉन d थीटा मीन्स हमने tan थीटा को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करेंगे, तो फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा, इसकी जगह sec स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इस तरह से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो DL इज इक्वल टू r sec स्क्वायर थीटा d थीटा आ गया, ठीक है। ये इतना जो ब्रैकेट में लिखा है ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है कि ये DL के एक्सप्रेशन कैसे आया। सो DL इज इक्वल टू r sec स्क्वायर थीटा d थीटा।
अब स्टेप नंबर 5, हमको ये चीज पता है कि अभी हमने ये प्रूव किया कि P इज इक्वल टू आर सेक थीटा, और साथ ही साथ हमने प्रूव किया DL इज इक्वल टू आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इन दोनों को अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 हमारी क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है ये dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल कॉस थीटा अपॉन पी स्क्वायर। इसमें अगर हम पुट करेंगे ये वैल्यूज तो क्या होगा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई DL की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, DL की जगह हम पुट कर रहे हैं आर सेक स्क्वायर थीटा, ये आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा ये DL की जगह पुट किया गया, और कॉस थीटा यहां पे आर कॉस थीटा है, आर कॉस थीटा ये देखिए, जब हम आर कॉस थीटा यहां पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई ये आर आर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसका जो आर कॉस थीटा है इसका आर इससे मल्टीप्लाई हो गया तो आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया, ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखो फाइनल एक्सप्रेशन हमारा क्या आ गया, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर कॉस थीटा डी थीटा। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब स्टेप नंबर 6 में इफ फॉर लोअर एंड थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा, क्योंकि एंगल नीचे की तरफ बन रहा है तो इसलिए माइनस किस नीचे की तरफ मीन्स व्हाट, ये जो एंगल है हमारा ये देखो ओपी से नीचे बन रहा है ना, ओपी को अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के हिसाब से अगर हम इसको एक्स एक्सिस माने तो ये नीचे की तरफ बन रहा है तो इसलिए माइनस अल्फा हो गया और ये प्लस बीटा हो गया। सो दैट्स वाई ये क्या हो गया, हम इसको B इज इक्वल टू मीन्स इफ वी वांट टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द एंटायर स्ट्रेट कंडक्टर, ये जो है ये तो ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंट, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड विच इज क्रिएटेड ड्यू टू द करंट कैरिंग स्मॉल एलिमेंट हुज लेंथ इज DL, ये सेकेंड इक्वेशन में जो आया। अब इस तरह के बहुत सारे अगर DLs हैं पूरे कंडक्टर में तो क्या होगा, हम उसको इंटीग्रेट करेंगे। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन का साइन लगा करके जब हम dB करेंगे तो ये B में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज ऑल द dBs मीन्स ऑल द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड विच इज क्रिएटेड थ्रू एंटायर ड्यू टू द एंटायर लेंथ ऑफ दैट कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर, तो वो dB इंटीग्रेट होकर के B आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो माइनस अल्फा टू बीटा हमने लिया है, इसकी लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में देखो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, यहाँ पे भी माइनस अल्फा टू बीटा और कॉस थीटा डी थीटा। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर हमने इस इंटीग्रेशन साइन के बाहर ले लिया बिकॉज ये पूरा कांस्टेंट है। अब आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे कॉस थीटा डी थीटा तो ये अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला दिस बिकम साइन थीटा, ब्रैकेट के बाहर माइनस अल्फा और बीटा लिमिट है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप ये होगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ब्रैकेट में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा आ जाएगा। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया फॉर द करंट कैरिंग कंडक्टर, मीन्स if we take a point which is near to the current carrying conductor, suppose point P we have taken, and at point P the magnetic field which is created due to the whole current carrying conductor will be represented by this formula mu naught I upon 4 pi r sin alpha plus sin beta in bracket. Okay, अब ये तो हो गया फाइनाइट कंडक्टर का फॉर्मूला। अब देखिए अगर हमको इनफाइनाइट कंडक्टर के लिए कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड। इनफाइनाइट कंडक्टर का मतलब कि उसका जो ए एंड है वो भी इन्फिनिटी पे है और जो बी एंड लोअर एंड है वो भी इन्फिनिटी पे है, मींस वी कैन नॉट कैलकुलेट द लेंथ ऑफ होल कंडक्टर। तो फॉर फाइंडिंग द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइट कंडक्टर, मैंने आपको पहले थ्योरी में समझाया हुआ है कि ये अल्फा और बीटा क्यों 90 डिग्री हो जाते हैं। इसलिए 90 डिग्री हो जाते हैं क्योंकि ओ से पी की जो डिस्टेंस होती है, ओ से पी की डिस्टेंस, अब सोचो इधर भी इनफाइनाइट है अपर, मीन्स अगर ये ओ है तो ओ के ऊपर भी इनफाइनाइट लेंथ है, ओ के नीचे भी इनफाइनाइट लेंथ है। तो जब इनफाइनाइट इधर भी है इनफाइनाइट इधर भी है, तो जब हम इसको ज्वाइन करेंगे अपर एंड से और इसको ज्वाइन करेंगे, मतलब ये पी पॉइंट है, इसको ज्वाइन करेंगे लोअर एंड से, तो ये लगभग 90 डिग्री हो जाएगा। मीन्स ओपी जो लेंथ है वो नेग्लिजिबल हो जाएगी एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ दैट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इसलिए अल्फा 90 डिग्री बीटा 90 डिग्री अगर हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो यहाँ पे आपका फाइनल एक्सप्रेशन साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो 1 + 1 विल बी 2, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर, तो आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा फॉर द इनफाइनाइट कंडक्टर बी इनफाइनाइट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये बी इनफाइनाइट इसीलिए शो किया गया ताकि ये एक्सप्रेशन याद रहे आप लोग को कि
ये इनफाइनाइट कंडक्टर के पास में कोई भी पॉइंट है, करंट कैरिंग इनफाइनाइट कंडक्टर के पास में अगर कोई पॉइंट P है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड अगर हमको निकालनी है और हम अगर हमें करंट पता है और हमें उस पॉइंट P का डिस्टेंस फ्रॉम दैट इनफाइनाइट कंडक्टर वो R है, वो हमको पता है, तो हम आराम से इसको इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। और SI यूनिट होती है, आपको मालूम है मैग्नेटिक फील्ड की SI यूनिट न्यूटन पर एम्पियर मीटर होती है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।